सरमन में जाएं अब? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I want to teach about families today. और आज हम परिवारों के I'll बारे में not बात take much करेंगे। time. मैं ज़्यादा भाई I'll ज़्यादा go समय fast. लेंगे, बहुत तेज जाएंगे So that you get it in the spirit. ताकि आप आत्मा में उसको ले लें। And I think we'll put this message on YouTube. You can see it again. और हो सकता है हम उस मैसेज को यूट्यूब पर डालें, फिर आप देख सकते हैं वापस जाके। Okay? Just write the key scriptures. और आप वचनों को लिख लें बस। First Samuel, पहला शमूएल, chapter 1, पहला अध्याय, verse 1 to 18. Verse 1 to 8. 1 से लेकर 8 तक। Okay? Just write it down. जस्ट इसको लिख लें। First Samuel, पहला शमूएल, chapter 1, पहला अध्याय, verse 1 1 से लेकर to 8. 8 तक। And once you've written it down, और जैसे ही आपने लिख लिया है इसको, just look to me. Okay? I will हमारी tell ओर you. देखें। Because we have less time. हमारे पास कम समय है, खोलिए मत। Are you ready? Are you ready? देखिए इधर देखिए। यस, क्या आप तैयार हैं? You ready? तैयार हैं? You're ready to hear? सुनने के लिए तैयार हैं? Those who are ready, can you say praise the Lord? जो तैयार है कहें प्रेज लॉर्ड। Loudly, come on. जोर से बोले प्रेज लॉर्ड। Yes. Okay. So, there's a man named Elkanah. और एक आदमी है, उसका नाम है एल्काना। What is his name? एल्काना। Elkanah. He has two wives. उसकी 2 बीवियां हैं, Hannah, हन्ना, Peninnah. पनिन्ना। Okay? Hannah, हन्ना, Peninnah. पनिन्ना। Now, what I am not teaching is that you should have two wives. No. और हम ये नहीं सिखा रहे हैं आपको कि आपको 2 बीवियां रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। One is more than enough. एक काफी है। Okay? But what I am telling you पर is, भाई ऐसा बताना चाह रहे हैं, Hannah did not have children. हन्ना के पास बच्चे नहीं She was थे, barren. वो बांझ थी। And Peninnah had a lot of children. और पनीना के बहुत सारे बच्चे थे। So when these two would come together और जब वो एक साथ आते थे, मिलते थे, while cooking roti, रोटी बनाते समय Peninnah would say, पनीना कहती थी, "Oh barren, ओ बांझ, you have no children तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं है। from so many years. और सालों से Poor Elkanah, वो बेचारा एल्काना he does everything for you. तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, No children." तब भी कोई बच्चे नहीं। And in the kitchen she would start crying. Hannah और would start crying. और किचन के अंदर हन्ना रोना चालू कर She देती would थी। go in her bedroom. वो अपने बेडरूम में जाएगी, She's crying day and रो रही night. है, दिन रात रो रही है, Peninnah would taunt her day and night. This is what the Bible says. पनीना उसको दिन और रात चिढ़ाती थी। Day and night she would say, दिन और रात, "This is how you are? अरे तुम ऐसी हो, Can't bear children? और बच्चे पैदा नहीं कर सकती, Fruitless? ओ बांझो, Idiot? बेवकूफ, No use. कोई काम की नहीं हो, Why are you even living?" This is क्यों what जी she would रही हो, speak. क्यों जी रही हो तुम, ऐसे कहती थी वो। And Hannah would hear it. और हन्ना सुनती थी, She would cry. वो रोना चालू करती She थी, would cry. रोना चालू करती At थी। night, रात को Elkanah would come home. एल्काना घर आएगा, He will see Peninnah. वो पनीना को Oh, देखेगा, she's so happy वो बहुत खुश है because she has spoken everything. क्योंकि उसने सब कुछ बोल दिया। She's puked everything on ओ Hannah. उसने सब कुछ उल्टी कर दिया हन्ना के ऊपर। And poor Hannah, और जो पूरी बेचारी हन्ना, Hannah, she's crying. वो रो रही है, She's crying like रो crazy. रही है, बच्चे से रो रही है। Elkanah would go to her. एल्काना जाएगा And the Bible says और बाइबल कहती थी, he would comfort her. और वो हन्ना को जाके सांत्वना देता था। Hallelujah. Can you hear me properly? Right? क्या आप सुन पा रहे हैं? I said he would comfort her. और भाई ने कहा कि वो उसको सांत्वना देता था। And as I was reading, जैसे भाई पढ़ रहे थे उसको, the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, husbands of Bethel Church should know to comfort their wives in the times of trouble. और मुश्किल समय में बेथेल चर्च के जो हस्बैंड्स हैं, जो पति हैं, उनको पता होना चाहिए अपने बीवियों को सांत्वना देने के लिए। In the same way, wives in Bethel Church, और उसी तरीके से जो वाइव्स हैं बेथेल चर्च when your में, husband is going through problems, और आपके जो पति हैं, जब वो समस्या से होकर जा रहे हैं, you should know to comfort them with right words. आपको जानना है कि आप उनको सही शब्दों से सांत्वना दें। Sometimes when we speak harsh words, और कई बार जब हम कुछ कटु शब्द बोलते हैं, you know, क्या होता है already पता they है? are struggling, वो वैसे ही परेशान है, already they are in problem, वैसे ही समस्या में है। and harsh words, और जो कटु शब्द होते हैं, it cuts like a rock. वो एक ऐसे पत्थर की तरह काट के And चले now, जाते हैं। और अब Your wife or your husband, और आपके जो पति, they आपकी जो are, पत्नी they है, are closed. वो बहुत बंद है, They don't feel safe with you उनको आपके साथ अब सुरक्षित महसूस नहीं हो because you रहा are hard in speaking. है, क्योंकि आप बहुत कड़कपन से बोल रहे हैं। In Proverbs
chapter 16 verse 24 it says, और नीति वचन 16 उसके 24 में ऐसा कहता है, gracious words are like honeycomb, और जो अनुग्रह के शब्द होते हैं वो एक शहद के समान है, sweet to the soul और वो प्राण को मीठे and healing to the bones. और आपकी हड्डियों के लिए चंगाई होते हैं। I want to ask you, church, और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ especially husband wives और जो पति पत्नी उनसे, and also children who are और sitting बच्चे, here, और जो बच्चे उनसे, how are your words to your parents? आपके शब्द आपके मम्मी पापा How are your words husband and wife to each other? और पति पत्नी आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? Inside the room, do you kill each other रूम के अंदर आप क्या एक दूसरे को मारते हैं शब्दों के द्वारा, by words, शब्दों के द्वारा, or do your words like honeycomb are sweet to their soul and healing to their body? या फिर आपके शब्द एक शहद के समान उनके प्राण के लिए मीठे और उनकी हड्डियों के लिए एक चंगाई का काम There was a करते हैं? couple in China. और चाइना में एक कपल था They were getting persecuted. और वो उन पे सताव आया, The Chinese police caught them. और जो चाइनीज पुलिस थी उन्होंने पकड़ लिया उनको। Are you hearing me? क्या आप सुन पा रहे हैं? Right? And they dug a pit. और उन्होंने एक गड्ढा खोदा। They said, if you don't refuse Christ, उन्होंने कहा कि अगर तुम यीशु को इनकारोगे नहीं, we'll dig the whole family और हम alive. पूरे परिवार को गाड़ देंगे। And they were not kidding. और वो मजाक नहीं कर रहे थे। The husband and the wife kept saying, no, we will not leave Christ. उन्होंने कहा हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, No, we will not leave Christ. हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। They put them in the pit उन्होंने उनको गड्ढे में डाल दिया and they started putting sand on them. और वो एक साथ उनके ऊपर वो फिर मिट्टी डालने लगे। They were till here, they were already in the pit. और यहाँ तक वो ऑलरेडी गड्ढे में आ गए थे। Last time the police officer said, और आखिरी बार पुलिस ऑफिसर ने कहने will कहा, you refuse Christ? क्या तुम यीशु को इनकारोगे? The husband looked at the wife and the children. They had 2 children. और जो पति था उनने बच्चों से और Children were- बच्चों को और उसकी बीवी की तरफ देख के The कहा, sand was till their nose. और जो बच्चे थे उनके नाक के पास तक जो मिट्टी आ गई थी, They were all holding hands like this वो एक साथ हाथ पकड़े हुए थे and they were standing together. और वो एक साथ खड़े हुए थे। The husband thought in his heart, और पति ने अपने हृदय में सोचा, if I tell these police officers अगर मैं बोलूंगा इन पुलिस ऑफिसर से that I refuse Christ, कि मैं यीशु को इनकारता हूँ, at least my kids will live. मेरे बच्चे कम से कम जी लेंगे। So he said, तो इसने कहा, please take us out. हमें बाहर निकालिए, We will not follow Christ. हम यीशु को नहीं मानेंगे। The moment he said that, जैसे ही उसने कहा, his wife, who उसकी was वाइफ holding जो his उसने हाथ hand, पकड़ी थी, she squeezed his hand inside the sand. उसने एकदम हाथ दबा दिया And she said, उस मिट्टी के अंदर। उसने कहा looking to the kids, बच्चों की तरफ देख के, kids, बच्चों today our heavenly Father will receive us. आज हमारा स्वर्गीय पिता हमें ले लेगा, Get ready. तैयार हो जाओ। That gave confidence to the husband. और ये He पति looked को विश्वास he looked बढ़ाया at the police officer. और उसने पुलिस ऑफिसर को देखा He said, और उसने कहा, bury us alive. हमें आज जिंदा गाड़ We दो, will not refuse Christ. हम नहीं छोड़ेंगे यीशु Most को। of the battles that are happening in your family, और कई सारी लड़ाइयां जो आपके घर में हो रही if हैं, you speak right words to your अगर wife, आप सही चीजें आप सही शब्द बोलेंगे if अपने you पति पत्नी speak को, right words to your husband, अपने पति को सही शब्द बोलेंगे, parents, if you speak right words to your children, जो बच्चे हैं अगर आप अपने मम्मी पापा को सही शब्द बोलेंगे, I am telling you, हम बता रहे हैं आपको, you will win those fights आप उन लड़ाइयों को जीत by the लेंगे power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Number 2, दूसरा, take advice. Write it down. सलाह ले। Number 2, दूसरा पॉइंट, take advice. सलाह ले। Exodus chapter 18. निर्गमन उसका 18। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Exodus लिख 18. लीजिए, निर्गमन उसका 18। Okay, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Say praise the Lord if you're ready. कहें प्रेज द लॉर्ड जब आप तैयार हैं। Okay, once again. फिर से बोलिए। Okay, yes. So, in the book of Exodus, और निर्गमन की किताब में Moses is taking care of 6 lakh plus people. और मूसा How many people? 6 लाख से ज्यादा लोग को ख्याल रख रहा है। Okay, so every day हर एक दिन Moses would sit in a chair और मूसा एक कुर्सी पे जाके early बैठता था, morning to night. सुबह से लेकर रात तक People would come to him, लोग आएंगे उसके पास bring their issues, और अपनी समस्या लेकर आएंगे, and he's dealing with the issues of 6 lakh plus people. और वो 6 लाख से ज्यादा लोगों की समस्याओं को देख रहा है। Jethro saw this. और जेथरो है, उसने देखा He gave an advice to Moses. और उसने एक सलाह दी मूसा को, He said, Moses, मूसा what you are doing is not right. तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है।
Moses received the advice मूसा ने उस सलाह को ले लिया and he put hundreds, 50s and 10 on 1,000, 50, 100 people. और उसने 100, 50 और 10 लोगों को रखा 50, 100 और 10 लोगों के ऊपर। So he made leaders. और उसने फिर क्या करा, So उसने one अगुवे leader बनाए। over 50 people, तो एक अगुवा 50 के ऊपर maybe 10 leader over 1,000 people. और Let's say. फिर ऐसे ऐसे समझ लेते हैं 10 लोग 1000 के ऊपर। And the burden that Moses was carrying और जो बोझा मूसा लेके चल रहा था was relieved. वो हल्का हो गया। This morning when I was sitting with the Lord, और आज की सुबह जब भाई बैठे थे प्रभु The के Lord साथ, said, प्रभु ने कहा so many couples they struggle, कई सारे कपल्स परेशान रहते हैं but they never take advice. पर वो कभी सलाह नहीं लेते। Is it true? क्या ये सच है? Is it true? क्या ये सच है? Internally in the room, अंदर में, कमरे में in अंदर their life, उनके they जीवन में struggle, वो समस्या में, but they don't take advice from some professional or a pastor. और वो पर कभी भी वो सलाह नहीं लेते किसी पास्टर से या फिर किसी प्रोफेशनल से जाके, जो Because they सीखे have हुए लोग हैं, shame. Because they have shame. क्योंकि उनके अंदर एक शर्म है। What will they think? वो लोग क्या सोचेंगे? I want to encourage you to. पर हम आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, Don't be caught up in shame. और वो शर्म में मत रहिए। Just like when you have, let's say, चलिए मैं थोड़ा कॉमिक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. हम एक हंसी वाला एक Let's उदाहरण say you लेते get a pimple on your butt. हैं। हो सकता है कि आपके जो पीछे का साइड है उसमें आपको एक फुंसी हो जाती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल? कुछ लोग इमेजिन भी करने लग जाएंगे, मुझे पता. If you have a pimple on your butt, अगर आपके पीछे साइड में एक फुंसी आ जाती है, it's paining a lot. वो दर्द हो रहा है, You can't sit, आप बैठ नहीं पा रहे you हैं, can't sleep, आप सो नहीं पा रहे you हैं, can't drive your bike. आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, Always there is pain. और हमेशा दर्द है यहाँ पे। What do? आप क्या करते हैं? You take your butt, आप अपने go to the doctor. आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते हैं? नहीं जाते हैं? जाते हैं. You show your butt और फिर आप उसको दिखाते to हैं the doctor. डॉक्टर को। Why? क्यों? There is pain. दर्द है। The same way उसी तरीके in से relationships, रिश्तों में when you have pain, जब आपको दर्द है, when you have issues, जब आपको and परेशानी if है, you cannot sort them, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं सही, go to your pastor. अपने पास्टर के पास जाइए। Go to a marriage counselor. हो सकता है एक मैरिज काउंसलर के पास जाइए, Tell them, उनको बताइए hey, this is what we are struggling with. मैं इस चीज से परेशान हूँ। You know, they will give you a new perspective to आपको life. पता है वो आपको एक नया सोच देंगे आपके जीवन में। So many times कई when बार I and Muskan, we don't understand things, जब भाई और उनकी वाइफ कुछ समझ नहीं पाते, I go to my spiritual father. वो उनके आत्मिक पिता के पास I go जाते to हैं, Mukesh Bhaiya. वो मुकेश भाई के पास जाते हैं I ask him, और Bhaiya, उनसे पूछते हैं, भैया this is what is happening in my ये हो marriage. रहा है मेरे शादी में, What should I do? क्या करें हम? And then he will give me advice from his experience of 30 years of marriage. और वो अपने 30 साल के अनुभव से अपने शादी के बारे में वो हमें सलाह देंगे। And then उसके बाद I will come back to my wife. फिर भाई अपने वाइफ के पास I will आएंगे say, hey, this is what Mukesh Bhaiya said. और वो कहेंगे ये मुकेश भाई ने Or कहा। maybe Muskan comes to me and says, hey, this is what my Didi said. और जो उनकी वाइफ है वो आके कहेंगे कि ये दीदी ने कहा है उनकी। And then we sit down, और फिर वो we बैठेंगे, discuss it, वो सोचेंगे and we start using it in our lives. और फिर वो अपने जीवन में उसको I'm इस्तेमाल telling करना you, चालू no करेंगे। marriage is perfect. हम आपको बता रहे हैं कोई भी जो शादी है वो कोई भी सिद्ध शादी नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है। Everyone has some or the other struggle. सबके पास कुछ ना कुछ परेशानी होती है। Some wife have struggled that their husband are farting at night. कई बीवियां को ये परेशानी है कि उनके जो पति हैं वो रात को पाते हैं, Some husbands are struggling that wife does not get up in the morning. और कई वाइफ ऐसे परेशान है कि उनकी वाइफ सुबह उठती नहीं है। What do you do? आप क्या करते हैं? See, you can't put a cork to the fart. You can't do that. आप उस पादने के जगह पे ऐसे कुछ लगा नहीं सकते उसको रोकने के लिए अंदर। Neither can you tell your husband to go to and sleep in someone else's house. और आप अपने पति को ऐसे बोल भी सकते हैं कि दूसरे के घर में जाके सो। I'm being open और हम because खुले I रहना want to चाहते break हैं the shame that you have. क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी शर्मिंदगी को You छोड़ें। don't tell your husband to sleep in the hall. आप अपने पति को नहीं बोलते कि जाके What do दूसरे you कमरे do में then? जाके सो। फिर आप क्या बोलते हैं? You seek help. आप मदद ढूंढते You हैं, take advice. आप सलाह लेते हैं, And you go to the doctor. फिर आप डॉक्टर के पास जाते You हैं, go to counselor. आप काउंसलर के पास And जाते say, हैं hey, this is what we are struggling और with. कहें ये चीज से मैं परेशान You हूँ। go to your pastor. आप अपने पासबान के पास Or you जाते हैं call your pastor to your house. या फिर आप अपने पासबान And को say, घर hey, पे बुलाते pastor, हैं। this वो is what कहते we are हैं, struggling with. पास्टर हम इस चीज से परेशान हैं, Big mess. बहुत बड़ा समस्या है, 2-year mess. 2 साल का है, 5-year mess. 5 साल का है,
then pastor says, hey, फिर don't पास्टर worry. कहता है डरने की बात नहीं, This is what the Bible says. बाइबल ये कहती है, Let's try this. ये चालू करके देखते हैं। And maybe when you start trying it, और जब आप उसको यूज करना, इस्तेमाल करना चालू करते things हैं begin to change. और चीजें बदलना चालू होती हैं, Issues begin to solve. जो समस्या है वो बदलना सही I'm सही होना telling चालू हो you, जाती couples है। who are sitting in our church right now, और हम बता रहे हैं जो जोड़े यहाँ बैठे हैं चर्च के even अंदर, the new people who have not got married, और जो नए लोग जिन्हें अभी शादी नहीं करी है, young people who have not got married, जो जवान है जिन्हें शादी नहीं करी है, when you get married, जब आप शादी करें don't be ashamed of opening your life to some senior person in the church who have 10-year experience, 15 experience, 13 years experience and taking help from them. और अपने आप को खोलने से डरिए मत उन लोगों के सामने और उन लोग से मदद लेने के लिए जिनके पास 13 साल 15-20 साल का एक अनुभव है और वो आपकी मदद कर सकते हैं। This will help you grow. वो आपको मदद करे कि ताकि आप बढ़ें। How many of you are understanding? कितने लोग समझ पा रहे हैं? Am I making sense to someone? क्या आप समझ पा रहे हैं हम कह रहे हैं क्या कह रहे Okay, हैं? can you clap and thank Jesus? क्या आप यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं ताली बजा के? चेक चेक। Okay, let me tell you a story, okay? Are you एक ready for कहानी a बताएंगे। story? क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? There was a couple from Jhansi. और एक झांसी से एक कपल था। Which place? कहाँ से? Jhansi. झांसी। So they were a newly married couple, और वो अभी एकदम फ्रेश शादी के जोड़े like थे, 1 or 2 years of marriage, 1 या 2 साल के। and the boy was a missionary. और जो लड़के थे जो मर्द थे वो प्रभु की सेवकाई में थे। His organization, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी they called him उनने उनको कॉल किया to serve in US, कि यूएस में आ जाएं, and the wife couldn't get a visa. और उनकी वाइफ को वीजा नहीं मिल पाया, So the husband had to go, तो हस्बैंड को जाना पड़ा and he went for at least 2.5 years. और वो 2.5 साल के लिए वहीं रहे। After 2.5 years, 2.5 साल बाद he thought he will not tell his wife और वो नहीं बताएंगे उनकी वाइफ को that I am coming, कि वो आएंगे, and he went home और वो घर गए from US यूएस से to Jhansi, झांसी तक। and he found out और उनको पता चला that there was another man living with her right before his eyes. और कि वहां पे एक उनकी आंखों के सामने कोई और उस स्त्री के साथ रह रहा He है। was heartbroken. वो उनका हृदय टूट गया The wife was heartbroken. और जो वाइफ थी उनका हृदय भी टूट गया। They went to a counselor. वो एक काउंसलर के पास Listen this गए। very carefully, बहुत everyone. ध्यान से सुनिए सब। They went to a वो counselor. एक काउंसलर के पास गए, They told the counselor, उन्होंने काउंसलर को बताया this is what has happened. ये हुआ है He हमारे was a साथ। Christian counselor. और वो एक क्रिश्चियन काउंसलर थे। First question the counselor asked पहला क्वेश्चन काउंसलर ने पूछा the husband, पति को, do you still want to live with this woman? क्या आप अभी भी चाहते हो कि आप इनके साथ रहो? Husband said, और जो पति थे उन्होंने कहा 3.5 years back, 3 और I 3.5 साल gave पहले my yes to her. मैंने अपना हाँ इनको दिया, I will not leave her. मैं इनको नहीं छोड़ सकता। Then he asked the wife, फिर उन्होंने वाइफ से पूछा do you still want to live with this क्या man? आप अभी भी चाहते हैं इनके साथ आप रहें? She said, I have committed a crime. मैंने गलती करी है, Teach me to live holy मेरे को सिखाओ ताकि मैं पवित्र जीवन जी with सकूं one man. एक मर्द के साथ। For 1.5 years, 1.5 साल तक the counselor kept working on their life. उनका जो काउंसलर है उनके साथ काम करता रहा Today they both have kids और आज उनके पास दोनों के पास They have बच्चे a हैं, church. उनके पास एक चर्च है and have a successful और marriage. एक सफल जीवन है और एक शादी का जीवन है। You will have success, my dear church, और मेरे प्रिय कलीसिया आपको सफलता मिलेगी, but you will have to break the shame. पर आपको शर्मिंदगी तोड़नी पड़ेगी। Shame of speaking about people, about to a counselor about what's happening in your life. ये शर्मिंदगी को या इस शर्म को कि आप अपने हृदय को किसी काउंसलर के सामने खोलते हैं, And if you do that, अगर आप वो करते हैं you will grow. आप बढ़ेंगे। Amen. Amen. How many of you want happy marriages? आप में से कितने लोग एक खुशहाल शादी का जीवन चाहते हैं? How many? कितने लोग चाहते हैं? सिर्फ 2 लोग, 4. Okay. कुछ लोग अभी भूल ही गए मेरी शादी हुई भी कि नहीं. Some people are like, ये सवाल, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ. Do you want a successful marriage? क्या आप एक सफलता का शादीशुदा जीवन चाहते हैं? अच्छे से हाथ उठा के दिखाइए. Right? If there is any issue, अगर कोई समस्या है don't hesitate. मत डरिए, Go to counselors एक काउंसलर के पास, Come to काउंसलर our के पास आइए, pastor. हमारे पासबान के पास आइए or come to Rajesh और bhaiya. या फिर राजेश भाई You के know, पास so आइए। many times, like I'll just testify about myself. और भाई अपने बारे में बता रहे हैं, I go personally to Rajesh bhaiya भाई राजेश भाई के पास जाते and हैं I ask him, bhaiya, how do you deal with bhabhi if this thing happens? और भाई आप भाभी के साथ कैसे काम करते हैं जब कुछ ऐसा कुछ होता है आपकी वाइफ के साथ? Specific things. And then कुछ sometimes he will चीजें। tell me, Joshua, this is what I do. और कई बार भाई कहेंगे कि जोशुआ मैं ऐसे करता हूँ, And then I'll come back. फिर वो वापस आएंगे, I'll try to do it in my life. फिर वो भाई अपनी जिंदगी में ऐसा करना चालू Now करेंगे। you will ask me, did you face problem in marriage? और आप भाई से पूछेंगे कि भाई आपने समस्या देखी? We had our own struggles. उनने शादी में समस्या देखी, उनने देखा है समस्या शादी में। I have seen
भाई ने देखा When है I and Muskan started living together, जब वो दोनों एक साथ रहने लगे, not only did we see our strengths, हमने अपनी ताकतों we को also देखा, saw our weaknesses. हमने अपनी कमियों को भी देख She लिया। saw my weakness, उनने उनकी वाइफ ने उनकी कमी को देखा and I saw her weaknesses, और भाई ने वाइफ की कमी को देखा and I also saw her strengths. और भाई ने उनकी ताकत को भी देखा। She saw my strengths. उनने भाई की ताकत को देखा। What do you do now? फिर आप क्या करते हैं आप? If you want to live with perfect peace, अगर आप एक सिद्ध शांति के साथ जीना चाहते हैं, keep taking advice. सलाह लेते रहे, Keep taking advice. सलाह लेते रहे Keep seeking out right counsel from right people. और सही लोगों से सही सलाह लें। Okay? Before I finish off, और इसके पहले कि हम खत्म करें, I've seen some women or even some men. और हमने कई मर्दों को और कई स्त्रियों को देखा है, You talk about your family issues to shame your husband. Don't do that. आप अपने घर अपने पति के बारे में बात करते ताकि आप उनको शर्मिंदा कर सकें, ऐसा मत करिए। Like for example, 10 people are sitting, जैसे कि 10 लोग बैठे हैं and you deliberately talk about your husband that this is what he does. और जानबूझकर आप ऐसे बात करते हैं कि आप उनको शर्मिंदा कर सकें, That ऐसा is मत not करिए। the place of advice. वो सलाह की जगह नहीं है। Sometimes husband do it, कई बार जो पति हैं वो करते हैं, sometimes wife do it. कई बार उनकी पत्नी करती है। No. नहीं। Party is not the place where you take advice. और ये जो पार्टी है ये सही जगह नहीं है जहाँ पे आप ऐसी बातें करें। Family meeting is not the place where you take advice. और फैमिली मीटिंग ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप सलाह लें। Seek advice when you are alone with someone you trust. और किसी पे जिस भी व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं, आप उनसे जाके अपनी समस्या का सलाह लीजिए And things will change. और चीजें बदलेंगी। Okay, last thing. आखिरी चीज, I don't know, I have so many points. Which one should I speak? Okay, I'll tell you a story about pizza. Okay. और भाई आपको एक पिज्जा की कहानी बताएंगे। So before going to Delhi, दिल्ली जाने से पहले I had 400 rupees in my pocket. भाई के पास 400 रुपए थे उनकी पॉकेट में। How many? कितने? 400. 400। दिल्ली ट्रिप जाना है मुझे और कितना है मेरे पास? 400. So I went to I went to pick up Muskan from my in-laws house. और भाई गए उनकी वाइफ को छोड़ने, To pick her up. वापस लेने उनकी वाइफ के घर से। And then Muskan told me that Pooja wants to eat pizza. और उनकी वाइफ ने कहा कि पूजा को पिज्जा खाना So है। from outside I said yes. और बाहर से उन्होंने कहा हाँ, But from inside, और अंदर से my heart is like, I only have 400. और भाई ने कहा मेरे पास तो सिर्फ 400 So है। I told Muskan, okay, let's go and buy pizza. और तो भाई ने कहा कि चलो ठीक है पिज्जा खाते हैं चल So के। they both don't know this, okay? और उन दोनों को नहीं पता है, First time I'm sharing this. मैं पहली बार बता And रहा this is हूँ। not against them. और ये उनके This is खिलाफ my नहीं है, heart. ये मेरा हृदय Okay? है। So in the car when I'm driving, और जब भाई कार में चल रहे थे, I'm like, Lord, और उनको प्रभु why do they want to eat pizza? इनको पिज्जा क्यों खाना When है? I have 400 rupees. तो मेरे पास 400 रुपए, When will the world understand? कब दुनिया समझेगी? You know, I'm having all these questions going in my head. कब दुनिया समझेगी? When will the world understand? कब दुनिया समझेगी? Pastor is saying amen. In my heart. और भाई के हृदय के All these things are अंदर going और ये on. चल रहा है। Why? क्यों? Why, Lord? क्यों प्रभु? I don't know if I can even buy Domino's pizza in 400 or not. That is another question. मेरे को तो ये भी नहीं पता प्रभु कि मैं 400 रुपए में डोमिनोज पिज्जा ले पाऊंगा नहीं। Even one small farmhouse is more than 400. और एक छोटा फार्म हाउस पिज्जा ही 400 का आ जाता है। Lord, what should I do? प्रभु क्या करें? Anyways, I'm driving to get pizza, you know. और तब भी हम जा रहे हैं कि हम कार लेके जाके पिज्जा चलाएं। And then the Lord shifted my perspective और एकदम से प्रभु ने भाई की सोच को बदल दिया while I'm driving. जब वो चला रहे थे गाड़ी। He said, you are more concerned about money और तुम पैसे के बारे में बहुत सोचते हो than about loving people. उससे ज्यादा कि तुम लोगों को प्यार करने के बारे में सोचो। I'll say it again. और फिर से हम He कहेंगे, said, you are more concerned about money और उन्होंने कहा कि तुम पैसे के बारे में बहुत सोचते हो than about loving people. इससे ज्यादा कि तुम लोगों के बारे में सोचो। I was like, what should I do now? और भाई ने कहा कि अब क्या करें? God said, प्रभु ने कहा I live in Pooja. मैं पूजा के अंदर रहता हूँ, If you feed her, अगर तुम उसको You खिलाओगे feed me. तुम मेरे को खिलाओगे। this is an opportunity ये तुम्हारे लिए एक चांस है to invest. अपना कुछ देने के लिए, And literally, अपना निवेश करने के लिए। literally I'm telling you, और सच में हम बता रहे हैं आपको, when I bought that pizza, जब हमने वो पिज्जा खरीदा I've never been so happy. मैं आज तक इतना खुश नहीं हुआ। So many times. Why कई am I बार। sharing this story? और हम ये कहानी क्यों बता So रहे हैं? many times in कई husband-wife बार relationship, पति और पत्नी के रिश्तों में, in parent
daughter or son relationship, और माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में money comes in. पैसा आता है, You take all the money. तुम सारा पैसा ले लेते हो, So much money every time. इतना सारा पैसा। I know there has to be a limit. और हाँ, एक सीमा होनी चाहिए। I know I'm not against limits, हम उसके 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 खिलाफत नहीं है, but I am against. पर हम अगेंस्ट हैं। Is money important or is relationship important? क्या पैसा जरूरी है या फिर रिश्ता जरूरी है? Because if money is important, अगर क्योंकि पैसा जरूरी है, you will not value any relationship. आप किसी भी रिश्ते को आदर नहीं देंगे, Because then you will look at every person from the money either you are giving or you are receiving. फिर आप हर एक व्यक्ति को उस जगह से देखेंगे जहां से आप पैसे ले रहे हैं या और आप पैसे दे रहे हैं। But when love becomes important, पर जब प्यार जरूरी बन जाता है, money goes aside. पैसा चले आता है बाजू में, Literally, money goes aside. पैसा बाजू में चले आता है। I don't know why I'm sharing this story. और हम नहीं जानते कि हम ये कहानी को क्यों बता I रहे want हैं, to encourage you. पर हम आपको प्रोत्साहन देना चाहते Don't हैं। fight for property. अपने अपनी जमीन के लिए मत लड़िए, Don't fight for money from your parents. अपने मम्मी पापा से पैसे के लिए मत लड़िए, The Lord is willing to bless you. क्योंकि प्रभु आपको आशीष देने के I'm लिए telling you तैयार है। that very same day, और हम बता रहे हैं वो ही उसी दिन I only put in 250 rupees. हमने सिर्फ 250 रुपए लगाया, I received 1500 from so many people. भाई ने किसी और से 1500 रुपए लिए। I didn't tell them. भाई ने किसी ने भाई को 1500 रुपए से ब्लेस करा। Someone gave me 500. Another person said, I felt like the Lord told me to give you 1000. और किसी ने भाई को 500 रुपए दिया और किसी ने भाई को 1000 रुपए दिया और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि प्रभु आपको 1000 रुपए हम देना चाहते हैं प्रभु की तरफ Church, से। I really want that you should not value money more than people. और चर्च हम ये चाहते हैं कि आप पैसे को उस प्यार से ज्यादा आदर मत दीजिए। Love people. लोगों को प्यार करिए। Yeah, they will eat. They will consume your हाँ money. हाँ, वो आपका पैसा खा जाएंगे, They will eat good food. वो Money is gone. अच्छा okay. खाएंगे, ठीक है। But when you give importance to money, you know why am I saying this? पर जब आप पैसे को ज्यादा आदर देते हैं, You know why am I saying this? पता है आप क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? Because when you give more importance to money, क्योंकि जब आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, in your heart, what you are saying is, आप अपने हृदय में पता है क्या कह रहे हैं? God cannot provide for me. प्रभु मेरे को नहीं दे सकता। और I'll say it again. मैं फिर से कहता हूँ, When money becomes important than love for people, जब पैसा ज्यादा जरूरी बन जाता है लोगों से प्यार करने in से, your heart, आपके हृदय में, the message is, आपके हृदय में, दिल में ये चल रहा है, God cannot provide. प्रभु मेरे को Therefore, प्रबंध नहीं कर सकता है I मेरा, have to save money इसलिए मेरे को पैसा so इकट्ठा I can करना है provide for myself. ताकि मैं खुद के लिए Are you प्रबंध getting कर it? सकूं। Are क्या you आप समझ getting- समझ पा रहे हो आप? क्या आप समझ पा रहे हैं? संस्कृत में तो नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेनिश में भी नहीं बोल रहा हूं। अगर सेविंग मेंटालिटी है जहां पर लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं बता रहा हूं आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते ही नहीं हो। And if you have a saving mentality, that means you are not trusting God for His provisions. But if you have a giving mentality, पर अगर आपके पास देने का एक सोच है, जहां पर ये बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास उस 5 रुपए से, तो मैं उसको 5 देना चाहता हूं, आपको पता है there is someone in heaven who will provide for my needs. और आप you know that this kid is more important than the money that I have, you know the value of You the know, father. when wife gives good things to her husband, और आप जब जानते हैं कि जब एक बीवी अपने 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 पति को कुछ अच्छा देती है, एक maybe अच्छा she has तोहफा saved देती है, 10,000 in the whole year, और उनने पूरे 10 साल में 10,000 बचाए and she gave it to her husband और उनने as अपने a पति को birthday दिया gift. एक बर्थडे गिफ्ट की तरह। You know what is the message behind it? पता है आप क्या जानते हो उसके पीछे मैसेज क्या Number है? 1, पहला, you are more important than the money I have. आप ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए उस पैसे से। Number 2, दूसरा, there is a God who will give it to me again. और मेरा एक खुदा है जो मेरे को देगा। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? I have so much more to give you, but I can't. और हमारे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, पर हम नहीं दे I पा have रहे। so many things in my spirit. और भाई के आत्मा में बहुत सारी चीजें जो आप बोलना चाह रहे हैं, And now I'm going to pray for you. पर हम आपके लिए अब प्रार्थना I would करेंगे invite our leadership team to come. और हम अपने अगुओं को बुलाएंगे कि वो आएंगे। I would request only the couples to stand up first. और We जो wanna pray for जोड़े the हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, सिर्फ वो ही खड़े हुए हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना If your चाहते हैं। wife is not with you, please go stand with your wife or your husband. और अगर आपकी वाइफ, अगर जोड़े एक साथ नहीं है, प्लीज हस्बैंड वाइफ एक साथ आके खड़े हो जाएं। If your husband is not here, no अगर आपके problem. पति आपके साथ नहीं है, प्लीज पति एक साथ आ जाएं You- और वाइफ एक साथ आ जाए। अगर आपका पति यहाँ नहीं है,
तो अगर- कोई बात नहीं, वाइफ अकेले भी खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ओके? बट हस्बैंड वाइफ एक साथ खड़े हो जाए इस समय। जो शादीशुदा है पर आपका पति या पत्नी नहीं है, आप भी खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। जो शादीशुदा नहीं है बट जो शादीशुदा है पर आपके पति या फिर आपके पत्नी नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ओके, होल्ड हैंड्स विथ योर हस्बैंड एंड योर वाइफ। और जो पति पत्नी अपने हाथ पकड़े, एक दूसरे के हाथ पकड़े। ओके, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ठीक है, मिल गई पत्नी आपकी, सबको अपने अपने जोड़े मिल गए। पति मिल गए, खुश हैं उन्हें देख के? चलिए लेट्स प्रे, आंखें बंद करेंगे हम लोग। चलिए हम ठीक है, प्रार्थना अगर आप करेंगे, बंद अकेले भी करेंगे। हैं तो मैं चाहता हूं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और अकेले हैं तो बस अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दें। अकेले हैं अगर तो दोनों हाथों को ऊपर उठा दें। फादर आई प्रे, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस every couple in the church. हर एक जोड़े को आशीष दे चर्च के अंदर, Let their marriages thrive in Jesus' name. और उनकी शादी संपन्नता में आगे बढ़े यीशु के नाम से। Let their marriages see abundance in Jesus' ओ name. भरपूरी हो उनकी शादी में यीशु के नाम से, Let them live with perfect unity, और वो एक सिद्ध एकता में जिए, perfect peace, एक सिद्ध शांति में, righteousness of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की धार्मिकता में, and let it start to seep in the family और वो उनके परिवारों में आने पाए अभी through them, उनके द्वारा, through them. उनके द्वारा। Let these very families और यही परिवार advance the kingdom of God. प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं, Advance the kingdom of प्रभु के God. राज्य को आगे बढ़ाएं, Advance the kingdom प्रभु of के God. राज्य को आगे बढ़ाएं, And have happy marriages. और एक खुशहाल शादी From जीवन हो। today, आज से In Jesus' name, यीशु के नाम I से, speak every immovable circumstance to change in their life. और हर एक चीज जो हट नहीं रही है यीशु के नाम से हटना चालू हो जाए। I speak in Jesus' name. यीशु के नाम से I speak. मैं बोलता हूँ, If there were issues, अगर यहाँ पे परेशानियां थी, Father, start to speak to them. प्रभु जो रिश्ते में समस्या थी उनके द्वारा, प्रभु And let आप them उनके अंदर open बात up. करना चालू करें और उनको खुलना चालू करिए। Let them break their partnership with shame. प्रभु वो शर्मिंदगी से अपनी दोस्ती को तोड़ें। Let them enjoy each other so प्रभु वो much. एक साथ मिल के एंजॉय करें। Let them enjoy each other's talk so much. प्रभु वो एक साथ मिल के समय व्यतीत करके एंजॉय करें। प्रभु गार्डन घूमने के लिए एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, समय बिताने के लिए एंजॉय करें। मैं मांगता हूं एक दूसरे के साथ, where they love each other like crazy. जैसे वो एक पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। प्रभु Bless them, Father, प्रभु उनको आशीष दे in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Okay, now